has arrived. It is with immense honor and profound respect that we welcome the distinguished personalities who grace this symposium. May I request everyone to rise and join me in welcoming our esteemed guest. Now we humbly request all distinguished guests to take their seats on the dais. Okay, thank you, ma'am. Please welcome our chief guest, Dr. Neetu Jain, Joint General Manager, Business Department of Airport Authority of India. Joining her is our esteemed guest of honor, the Chief Vigilance Officer of University of Delhi, Professor Dr. Gajendra Singh. We also welcome our patron, the guiding light of Hansraj College, none other than our principal, Professor Dr. Rama ma'am. And of course, the backbone of this event, our convener, Mr. Narendra Singh Rawat. Thank you everyone. To commence this auspicious event, it is our hallowed tradition to invoke the blessings of Goddess Saraswati Ma, the deity of knowledge and wisdom. I request our distinguished guests on the dais to proceed towards the lamp to perform the ceremonial lighting of lamp. सॉन्ग से बीच में कैसे हाँ सॉन्ग प्ले करना है May this light dispel the darkness of ignorance and corruption, guiding us on the path of truth and vigilance. We now seek the collective spirit and identity of our institution through the resonating notes of Hansraj College anthem. I request all the members of Hansraj College fraternity to please stand for the anthem. अविरल निर्मल सलिल सदय ज्ञान प्रदायिनी ज्योतिर्मय हो चहु दिशि उद्घोष अभय दिए विजय जय दिए विजय जय प्रबल प्रवाहमयी नित नूतन जीवन दायिनी सदा सनातन वेद प्रणीता परम पुनीता ये धारा अक्षय दिए विजय जय दिए विजय जय दयानंद से प्रेम भक्ति ले हंसराज से त्याग शक्ति ले धर्म भक्ति का राष्ट्र शक्ति का वो दिन मान उदय दिए विजय जय दिए विजय जय सुख समृद्धि इसकी लहरे प्रेम शांति इसके तट ठहरे सघन शांतिमय प्रबल कांतिमय लिए अटल निश्चय दिए विजय जय दिए विजय जय. It is now time to formally felicitate our esteemed guest. I request our principal, Professor Dr. Rama ma'am, our convener, Shri Narendra Singh Rawat, and Prabhanshu Ahuja ji to please come forward and honor our guest with floral tribute and memento. Our guest of honor, Shri Gajendra Singh Rawat, sir.
और नीतू मैम to please felicitate our principal, Professor Dr. Rama ma'am. Now I would like to call R.C. Garg sir and Balkrishna sir to please felicitate special representative from AAI, Shri Surendra Pal sir and R.K. Sharma sir. Context for today's Vital Symposium, I invite our respected professor from Hindi department, Prabhanshu Ojha sir to address the symposium. बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए, इस अत्यंत जरूरी सप्ताह के लिए। ये विजिलेंस वीक है, सतर्कता सप्ताह है, जहां पर हम सब ये शपथ लेंगे कि हम अपने नैतिक मूल्यों में, अपने दैनिक जीवन में ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा इसका पालन करेंगे। तो मैं हंसराज महाविद्यालय की ओर से सबसे पहले आपका सभी अतिथियों का अभिनंदन करता हूं। एक बार जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करें। हमारी आदरणीय प्राचार्य प्रोफेसर रमा मैम, जिनके कुशल नेतृत्व में हंसराज कॉलेज की मूल्य में ही है ईमानदारी, नैतिकता, जो कि यहाँ के विद्यार्थी पूरे देश में, मैं कहूँ पूरे विश्व में जहां भी हैं, वो महात्मा हंसराज जी के, स्वामी दयानंद जी के जो मूल्य हैं, जो उनकी सिखाई गई बातें हैं, उनका अनुपालन अपने जीवन में कर रहे हैं। मैं स्वागत करूंगा आदरणीय प्रोफेसर गजेंद्र सर का। गजेंद्र सर दिल्ली विश्वविद्यालय के चीफ विजिलेंस ऑफिसर हैं, बहुत ही लोकप्रिय शिक्षक हैं। सर दिल्ली यूनिवर्सिटी के सबसे प्राचीन छात्रावास जो हेरिटेज बिल्डिंग भी है, ग्वायर हॉल, उसके मेरे सीनियर भी हैं और अभी प्रोवोस्ट हैं सर वहां के। तो सर विशेष अभिनंदन आपका हंसराज कॉलेज में, बहुत बहुत स्वागत। भारत अफ्रीका संबंधों को मजबूती देने में अफ्रीकन विभाग के प्रोफेसर और अध्यक्ष होने के नाते सर की बहुत केंद्रीय भूमिका रही। तो हंसराज कॉलेज निश्चित रूप से आज गौरवान्वित है सर आपके आगमन के पश्चात। मैं आदरणीय नीतू मैम का धन्यवाद करूंगा इस महत्वपूर्ण इनिशिएटिव के लिए। हंसराज कॉलेज और हमारी प्राचार्य मैम सदैव तत्पर रहती है, कोई भी संस्था जो अच्छा सोच रही है, जो अच्छा कर रही है, राष्ट्र के विकास में जिनका योगदान है, मैम बिना कुछ सोचे हमेशा तैयार रहती है कि हंसराज कॉलेज आपके साथ खड़ा है। अगर आप सच के साथ खड़े हैं, राष्ट्र निर्माण के साथ खड़े हैं, तो हंसराज कॉलेज आपको अपने साथ खड़ा मिलेगा। मैं स्वागत करूंगा आदरणीय रावत सर का। रावत सर कहते हैं कि पुस्तकालय जो है किसी भी संस्थान की प्राणवायु होते हैं, ऑक्सीजन होते हैं, जहां आप किताबें पढ़ते हैं, और सिर्फ किताबें मात्र नहीं, एक इमोशन होता है पुस्तकालय। तो वहां के बहुत ही लोकप्रिय पुस्तकालय अध्यक्ष हंसराज कॉलेज के रावत सर, जोरदार तालियों के साथ रावत सर का हम सब स्वागत करते हैं। हर एक कार्य में रावत सर हम सबके साथ खड़े होते हैं। और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की पूरी टीम के सभी सदस्य जो भी आदरणीय यहाँ उपस्थित हैं, आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत। हमारे विद्यार्थियों का बहुत धन्यवाद। माइला सर, गर्ग सर, नेगी सर, शैलेन सर, सबका मैं स्वागत धन्यवाद करता हूं। और आज के हम जिस महत्वपूर्ण अवसर पर उपस्थित हुए हैं कि हम अपने जीवन में भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक मुहिम चलाएं। आजकल सोशल मीडिया पे एक क्लिप बड़ी वायरल हो रही है, अगर आप लोगों ने देखा होगा, कि एक डीएसपी ने बहुत लंबा चौड़ा भाषण दिया कि अगर घूस लेते हुए कोई मिले, आपको दिखे, तो 1064 पर कॉल करिए, और 2 घंटे बाद सर वही डीएसपी गिरफ्तार हो गया। तो ये विरोधाभास हमारे जीवन में ना हो, मतलब इतना कॉन्ट्रडिक्शन, हमको ये मूल्य पता चले कि अगर हम कहते हैं कि हम सच बोल रहे हैं तो उसको महसूस भी करें, उसको अपने अंतरात्मा में हम शामिल करें। अगर हम कहते हैं कि हम ईमानदार हैं, हम कहते हैं कि हमारी कर्तव्य निष्ठा है, वो चाहे आदरणीय रमा मैम हमेशा कहती हैं कि कैमरे या कोई व्यक्ति आपको भले ना देख रहा हो, लेकिन जो है ऊपर एक अदृश्य शक्ति है जो आपको देख रही है। और भारतीय परंपरा में तो ये था ही, गलत करने से पहले कोई नहीं भी देख रहा तो एक ईश्वर का डर रहता था। ये हमारे समाज के मूल में था। शायद इस डर में कुछ कमी आई है, अब लोग भगवान से भी नहीं डर रहे हैं। तो ये सप्ताह बहुत जरूरी है। हम बड़ी बड़ी परीक्षाएं पास कर लें, आईआईटी में चले जाएं, एमबीबीएस कर लें, आईएएस बन जाएं,
बड़े पदों पर चले जाएं, लेकिन ये कुछ बेसिक मूल्य हैं। बैक टू बेसिक्स कहते हैं। सचिन तेंदुलकर हमेशा इस बात को कहते थे कि मैं जब असफल होता हूं तो अपने क्रिकेट के पहले दिन को याद करता हूं। तो हम सबको भी अपने, जब हम एक सभ्यता के रूप में, एक लोकतंत्र के रूप में हम बनना शुरू हुए, तो हमारे क्या मूल्य थे, रिश्तों की क्या अहमियत थी, हमको उसी ओर लौटना होगा। हमारा धर्म, हमारी नीति, हमारा दर्शन, सबके मूल्य में यही सब बातें हैं। भ्रष्टाचार का हमारे जीवन में स्थान शून्य हो। विद्यार्थी जीवन से ही ये बातें हमारे मन में बैठ जानी चाहिए। मैं पुनः, आज का दिन हमें हमारे अतिथियों को सुनने का दिन है, हमें शपथ लेने का दिन है। तो मैं पुनः, आदरणीय रमा मैम ने मुझे सौभाग्य दिया कि मैं कॉलेज की तरफ से आप सबका स्वागत करूं। तो आज के इस बहुत ही पुण्य अवसर पर मैं कहूंगा कि मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं। इस मुहिम में मुझे मौका मिला बोलने का। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir, for that warm welcome and for the underscoring the vital role of integrity in academia as well as the national life. The core theme of Vigilance Awareness Week is to commit to a life of honesty. We now move forward to the movement of administration of integrity pledge or vigilance oath. I request Sri Suren Pal sir and R Sharma sir from HRAI to kindly come forward and administer this vital oath to all present here. May I request all the attendees to please stand and raise your right hand and repeat the pledge after Shri Surendra Pal sir and R Sharma sir. I believe that corruption has been one of the major obstacles to economic, political and social progress of our country. I believe that all stakeholders such as government, citizens and private sector need to work together to eradicate corruption. I realize that every citizen should be vigilant and commit to highest standards of honesty and integrity at all times and support the fight against corruption. I therefore pledge to follow probity and rule of law in all walks of life. To neither take nor offer bribe. To perform all tasks in an honest and transparent manner. To act in public interest. To lead by example, exhibiting integrity in personal behavior. To report any incident of corruption to the appropriate agency. Thank you. Thank you. We have all taken a vote to be vigilant and responsible citizens. You may now be seated. So integrity is a universal foundation and relevant to all sectors, well including academia. To share his valued insight from the perspective of vigilance in a major educational institution, we invite our guest of honor, the Chief Vigilance Officer of the University of Delhi, Shri Gajendra Singh. मंच पर बैठे हुए हमारे प्रिंसिपल मैडम, हमारी बड़ी बहन शरीकी, प्रोफेसर रमा नीतू जैन जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से हैं हमारे बीच में। आज की जो हंसराज कॉलेज ने ये विजिलेंस वीक अवेयरनेस प्रोग्राम का जो प्रोग्राम रखा है, जो ये सेमिनार सिंपोजियम रखा है,
उसको आयोजित करने वाली टीम के जो मेंबरान हैं, डॉक्टर नरेंद्र सिंह रावत, डॉक्टर प्रभांशु ओझा जी और अन्य सभी साथीगण, और आज के इस सेमिनार हॉल में उपस्थित सभी फैकल्टी मेंबर्स, रिसर्च स्कॉलर, स्टूडेंट्स, आप सभी को गुड आफ्टरनून, नमस्कार। साथियों, जैसा कि हम जानते हैं, पूरा भारत पिछले दिनों से विजिलेंस मंथ्स, पिछले 3 महीने नवंबर तक, और अभी हम विजिलेंस वीक सेलिब्रेट कर रहे हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम्स पूरे भारत में। अभी पीछे हमने सरदार पटेल जी का जो जन्म शताब्दी दिवस है, उसको भी हमने एकता दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया। वहाँ भी हमने प्लेज लिया है कि किस तरह से हम देश में, समाज में, अभी मेरे छोटे भाई प्रभांशु ओझा बता रहे थे कि समाज में जो इस तरह की विकृतियां हैं, उनसे हम कैसे पार पा सकते हैं, कैसे हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं डे टू डे लाइफ में, उनसे कैसे उभरा जा सकता है, उन सबको लेकर के आज हम यहाँ चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। मुझे जब मैं छोटा था तो एक बात याद आती है, जब हम विजिलेंस की बात करते हैं विशेष रूप से, कि परिवारों में जब छोटे बच्चे होते हैं ना, कई बारी मिट्टी खाते हैं, कच्चे आंगन होते थे घर में, तो मिट्टी खाते हैं, कंकड़ खाते हैं, कुछ और दूसरी चीजें भी खाते हैं, कई बारी पैसा भी खा लेते हैं, सटक जाते हैं, उसमें प्रॉब्लम होती है। तो घर में ड्यूटी होती थी सभी की कि ये जो बच्चा है ये मिट्टी खाता है और इस पर नजर रखी जानी चाहिए। तो जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो वो जो नजर रखने वाली बात थी, वही अपने आप में विजिलेंस है, कि किस तरह से हम ऐसे किसी भी कार्य के लिए जो कार्य नहीं होना चाहिए, जिससे परिवार में और परिवार के साथ साथ समाज में, समाज के साथ साथ देश में इस तरह की व्यवस्था में अगर आघात होता है, नुकसान होता है, तो वहां से विजिलेंस की शुरुआत होती है, वहां से विजिलेंस अपना काम शुरू करता है। साथियों, विजिलेंस का, मैं चूंकि पूरे देश में एक बड़ा सिस्टम काम कर रहा है, हायर एजुकेशन सिस्टम में विजिलेंस का एक बड़ा सिस्टम काम करता है। विशेष रूप से अगर हम दिल्ली विश्वविद्यालय की बात करें तो मोर देन 90 कॉलेज, मोर देन 80 और 90 डिपार्टमेंट्स, और लगभग 8 साढ़े 8 लाख हमारे बच्चे हैं, अलुमनाई ग्रुप है। तो हम सोच सकते हैं कि हमारा कितना बड़ा परिवार है, और उस परिवार में निश्चित रूप से कुछ ना कुछ उथल पुथल होती रहती है। जब बड़े परिवार होते हैं तो उसमें बच्चे रूठते हैं, बड़े भी रूठते हैं, और कई सारे गलत काम भी होते हैं जाने अनजाने में। तो ऐसे परिवार में, ऐसी फैमिली में, दूसरी जगह तो ऑर्गेनाइजेशंस में विजिलेंस वर्क करता ही है, लेकिन हम जब दिल्ली विश्वविद्यालय की बात करते हैं, और जब से मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के विजिलेंस डिपार्टमेंट से जुड़ा हूं, मैं लगातार, मेरी कोशिश यही है कि मैं खुद भी समझूं चीजों को, और जो हमारे साथीगण हैं, आप जैसे फैकल्टी मेंबर्स हैं, रिसर्च स्कॉलर्स हैं, ऑफिस स्टाफ है, उन सब को भी वो समझाने की कोशिश की जाए कि हम एक सिस्टम में रहते हुए अच्छा कैसे कर सकते हैं। क्योंकि अभी हम सब अच्छे तरीके से जानते हैं, हमारी यूनिवर्सिटी पिछले 4-5 साल पहले 600-700 की रैंकिंग में थी। वाइस चांसलर सर और उनकी टीम, और आप जैसे सभी जो कुशल विद्यार्थी हैं, फैकल्टी मेंबर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, स्टाफ है, उन सब की मेहनत लगन से अभी हम 328 पे पहुंचे हैं। हमारा लार्ज स्केल पर पूरी दिल्ली में डिपार्टमेंट वाइज कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है। आने वाले समय में हमें नई नई बिल्डिंग्स मिल जाएंगी, तो इसका एक्सपेंशन और होगा। नए नए कोर्सेज हम लगातार खोल रहे हैं। फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी इसी क्रम में एक नया हमारा कोर्स है, जो पहले कभी राष्ट्रीय और विश्व स्तर पर हुआ करता था,
जिसको अभी हम DTU के रूप में जानते हैं, वो दिल्ली सरकार ने हमसे लेकर के और दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी बना लिया। लेकिन हम दोबारा से मैं मंच से धन्यवाद देता हूं वाइस चांसलर सर प्रोफेसर माननीय योगेश सिंह जी और उनकी टीम को कि उन्होंने PMO से MHRD से लगातार फिर अपने प्रयास जारी रखे और वहां से सारा कोर्स और सारी फैकल्टी मेंबर्स की पोस्ट सभी अप्रूव करा करके हमने ये दोबारा तरीके से ये प्रोग्राम नया कोर्स लॉन्च किया है। तो मंच से मैं उनको धन्यवाद देता हूं। तो इस तरह के जितने भी काम है, अभी पिछले दिनों मैं आपके बीच में बताता चलूं कि रिक्रूटमेंट लगातार पूरे विश्व में, पूरे भारत में जितना लगातार रिक्रूटमेंट हुआ है, भारत दिल्ली विश्वविद्यालय उसमें से अग्रणी है, 1 नंबर पर है। लगभग हम 5000 फैकल्टी मेंबर्स को अब तक अपॉइंट कर चुके हैं विभागीय लेवल पर और कॉलेज लेवल पर। यह भी एक बड़ी त्रासदी थी, मैं उसके कारणों में नहीं जाना चाहता कि लंबे समय से भर्तियां नहीं हुई थी, रिक्रूटमेंट नहीं हुई थी डिपार्टमेंट लेवल पे और कॉलेज लेवल पर। अभी हमें नए साथीगण मिले हैं, NEP आया, उसके थ्रू हमें नए नए कोर्सेज मिले। इन सब से मिलकर के हम दिन रात जो पॉजिटिव वे में कार्य कर रहे हैं, उन सब का धीरे धीरे हमें रिजल्ट दिखने लगा है। और मैं मंच से यही कहना चाहता हूं कि लगातार जैसे हंसराज कॉलेज में प्रिंसिपल साहिबा रमा मैडम, मैं तो हमेशा उनको नाम लेके कभी पुकारता नहीं, मैं उनको बड़ी बहनी कह के बोलता हूं। मैं उनके कार्यों से, उनकी जो एक्टिवनेस है, जो एनर्जी लेवल है, उसको देख के पता चलता है हमें सीखने की जरूरत है कि हम किस तरह से इस कॉलेज को, मैं पिछले 25 साल से कम देख रहा हूं कॉलेज को, और वो रूप और आज का रूप जो हम कॉलेज का देखते हैं, तो निश्चित रूप से मैम मंच पे आप ये सोचेंगे कि मैं प्रशंसा कर रहा हूं, लेकिन आप सच में प्रशंसा के हकदार हैं। और आप दिन रात, आपसे लोगों को सीखने की जरूरत है। आप लगातार एनर्जी के साथ कोई भी काम हो, कभी भी निगेटिव दिमाग में बातें रहती ही नहीं कि किस तरह से समस्याओं का समाधान किया जाए, कैसे रास्ते निकाले जाए। तो मैं बैक टू फिर विजिलेंस पे आता हूं। ये तो हमारी जो एक्टिविटीज है कॉलेज लेवल पर या विश्वविद्यालय लेवल पर, उन सब के बारे में मैं बता रहा था। साथियों, जो विजिलेंस है किसी भी विभाग का, वो विजिलेंस, उसके बारे में थोड़ा बहुत पता होता है जो वहां के साथीगण हैं, जो ऑफिस में काम करने वाले लोग हैं, या जैसे हम दिल्ली विश्वविद्यालय की बात करें तो यहाँ भी जितने फैकल्टी मेंबर्स हैं, स्टाफ, उनको भी बहुत ज्यादा विजिलेंस के बारे में जानकारी नहीं होती कि वो उसका प्रोसीजर क्या है, वो किस तरह से कार्य करता है। साथियों, विजिलेंस का जो डिपार्टमेंट है वो 24 घंटे लगातार आपके बीच में काम करता रहता है। विजिलेंस मीन्स अलर्टनेस, वॉचफुलनेस। लगातार एक ऐसा विभाग जो आपकी गतिविधियों पर नजर बनाए हुए है। तो जरूरी है कि हम ये जो गतिविधियां हैं, जो डे टू डे लाइफ में हम गतिविधियां चला रहे हैं अपने ऑफिसेज में, उन गतिविधियों के प्रति जो हमारी अकाउंटेबिलिटी है, जो हमारी ईमानदारी है, उस ईमानदारी को हम किस तरह से निभाएं, उस अकाउंटेबिलिटी को हम किस तरह से निभाएं। विजिलेंस में हमें देखने को मिलता है कि ट्रांसपेरेंसी इन सिस्टम, ये विजिलेंस का काम है कि किस तरह से हम ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन कर सकते हैं एक सिस्टम में। अगर हम यह सिस्टम की बात करें तो हम सिस्टम कॉलेज लेवल की बात कर सकते हैं, विश्वविद्यालय लेवल की बात कर सकते हैं। किसी भी सिस्टम में जो लूप होल्स हैं, उन लूप होल्स को हम कैसे भर सकते हैं, जो वीकनेसेस हैं उनको हम किस तरह से रिपेयर कर सकते हैं, यह विजिलेंस अपने लेवल पे देखता है। विजिलेंस ट्राई टू क्रिएट करप्शन फ्री एनवायरमेंट। किसी भी इंस्टीट्यूशन में यह विजिलेंस देखता है कि हाउ वी कैन मेंटेन द करप्शन फ्री एनवायरमेंट, एमबीएस। उससे जुड़ने की, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो हमारा ऑफिस स्टाफ के मेंबरान हैं, चाहे फैकल्टी मेंबर्स हैं, जरूरी है
कि हमें शिद्दत के साथ, रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, अपनी जिम्मेदारी के साथ डे टू डे लाइफ में उनको हम निर्वहन करें। विजिलेंस का जो प्रकार है वो निश्चित रूप से हर एजुकेशन सिस्टम या दूसरी जगह पर 3 या 4 प्रकार के रूप में हमारी विजिलेंस काम करती है, जैसे प्रिवेंटिव विजिलेंस, डिटेक्टिव विजिलेंस, पॉलिटिव विजिलेंस और एजुकेटिव विजिलेंस। मुझे इन सब में से जो पूरा सिस्टम है, इन सब में जो सबसे अच्छा सिस्टम लगता है वो एजुकेटिव विजिलेंस का लगता है। एजुकेटिव विजिलेंस के तहत आज का जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं वो हमारा एजुकेटिव विजिलेंस के अंतर्गत आता है कि किस तरह से हम अवेयरनेस प्रोग्राम चला सकते हैं, स्टोरी टेलिंग के जरिए, बुकलेट के जरिए, पीरियोडिकली अवेयरनेस इंटरेक्टिव सेशन के जरिए, सेमिनार्स के जरिए हम किस तरह से अपने साथियों को अपने सिस्टम में ये बताएं कि सिस्टम को स्मूथली चलाने के लिए हमें कहां-कहां लेवल पर, किस-किस लेवल पर चीजों को सुधारने की जरूरत है। विजिलेंस के बारे में एक और कहावत है कि विजिलेंस इज द ड्यूटी ऑफ द मैनेजमेंट एज ए होल, नॉट ओनली फॉर द सीबीओ। तो एक फैमिली के रूप में ये केवल सीबीओ का काम नहीं है, एक चीफ विजिलेंस ऑफिसर का काम नहीं है। अवेयरनेस प्रोग्राम जो हम चला रहे हैं उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में आपको जुड़ना होगा। आप जब इस सिस्टम से जुड़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे तो वहां से रास्ते निकलेंगे कि किस तरह से सिस्टम डे टू डे में स्मूथली चल सकता है। और एक कोट में बीच में आपके रख रहा हूं, आप सब जानते होंगे, 1st सेंचुरी बीसी के एक राइटर्स, एक फिलोसोफर रहे हैं, पब्लिशर साइरस, लैटिन राइटर रहे हैं। वो कहते हैं he is most free from danger who even when safe is on his guard। वही इंसान अपने आप में सेफ है जो अपने पास या अपने लेवल पर गार्ड के रूप में अपने आसपास क्या घट रहा है गलत, उसके बारे में भी वॉच रखता है, देखता है कि क्या कुछ गलत हो रहा है तो उसको समझाए, देखे, उससे दूर रहने की कोशिश करे। और साइरस जी ये भी कहते हैं कि reputation is more valuable than money for a particular person in society। ये भी साइरस जी का एक कथन है। ये 1st सेंचुरी बीसी की बात मैं बता रहा हूं। तो साथियों, विजिलेंस में अगर हम आगे बढ़े तो पता चलेगा कि सिस्टम में विजिलेंस कहां से काम शुरू करेगा। सिस्टम में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स होगी, कंप्लेंट्स आएंगी, और निश्चित रूप से मैं आप सबके बीच में हूं तो मैं हिंट देना चाहता हूं कि पिछले 2-3-4 सालों में मैम जितना भी टीचिंग नॉन टीचिंग में रिक्रूटमेंट हुआ है, नॉट ओनली इन इंडिया लेवल, इंटरनेशनल लेवल पर भी लगातार हमारे पास में इस तरह की केसेस, मैं कोट नहीं करना चाहता, लगातार। अभी प्रभांशु जी मेरे बीच में है, छोटे भाई, मैंने 6 पोस्ट जो 15-20 साल से हॉस्टल में नहीं भरी गई, जो कमरों में स्टाफ हमें चाहिए सफाई के लिए, जो मैस में सब्जी काटने के लिए, रोटी बनाने के लिए, बर्तन धुलने के लिए जो स्टाफ चाहिए, और वो स्टाफ लगभग 15-18 साल 20 साल से काम कर रहे हैं। मैंने वीसी सर से, रजिस्ट्रार सर से रिक्वेस्ट की कि सर ये स्टाफ इतने साल से काम कर रहे हैं, दिन रात काम करता है, जब भी हम बोले रात को 9-9, 10-10 बजे तक ये मेस में काम करते हैं, इनको परमानेंट करने के लिए मुझे इजाजत दी जाए। तो हमने उस सिस्टम को शुरू किया। अभी शुरू ही किया है कि मेरा जो इनबॉक्स है प्रवोस्ट बहरहाल के नाम का, वो लगातार कंप्लेंट से भरने लगा। तो हम समझ सकते हैं कि सिस्टम में रह के, आप अच्छे से जानते हैं मैम कि जब ये इस तरह की व्यवस्थाएं चलती हैं तो उसमें हमें रिक्रूटमेंट तो कर ही रहे हैं, कोई इंस्टीट्यूशन में रह के जो अच्छे काम है वो तो कर ही रहे हैं हम, चाहे वो एडमिशन से जुड़ा हुआ है, चाहे बिल्डिंग से जुड़ा हुआ है, या और दूसरी चीजों से जुड़ा हुआ है। लेकिन पैरेलल लेवल पर हमें और एक मेंटल लेवल पर एक कंपटीशन से गुजरना पड़ता है। ऐसी बहुत सारी फेक आपके पास में डिविशियस ऐसी कॉल, ऐसी मेल आएंगी जिनका हमें रिप्लाई लगातार हमारी एनर्जी खराब करता है। तो जरूरी है कि इन सब चीजों को भी समाज में स्थान नहीं मिलना चाहिए,
जो काम अच्छे हो रहे हैं उनकी प्रशंसा हो, क्योंकि वो ही काम ऐसे हैं जिनसे किसी संस्थान का भला होता है। वरना अगर हम निगेटिव एनर्जी लगाएंगे, निगेटिव फोर्स लगाएंगे तो दिक्कतें पैदा होंगी और संस्थान में बहुत सारे जो प्रगति के रास्ते हैं उनमें रोड़ा पैदा होगा। तो मैं बता रहा था कि किस तरह से हम प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनको कैसे टैकल कर सकते हैं, कैसे हमें उनको एड्रेस करना होगा और उसका कॉज जो है उसमें जाना होगा कि हमारा बेसिक कॉज क्या है। इसी क्रम में इट इज ऑलवेज बेटर टू प्रिवेंट एंड प्रिपेयर रेदर देन रिप्लेंट एंड रिपेयर। हम जरूरी है कि हम पहले से, जैसे लाइब्रेरी में हमारे रावत जी हैं, रावत जी लाइब्रेरी साइंस में हमें सिखाया जाता है जो हमारे रीडर्स हैं, जैसे एवरी रीडर इट्स बुक्स, एवरी बुक्स इट रीडर्स। किसी भी बुक के लिए उसको रीडर होना जरूरी है, ये हमारे कानून की बात है, भारत सरकार कहती है और उसका राइट है कि उसको अगर बुक पब्लिश हुई है तो उसको उसका रीडर मिलना चाहिए। ऐसे ही हर एक रीडर को उसकी बुक भी मिलनी चाहिए। ये लाइब्रेरी में हमें लाइब्रेरी के जो नियम कानून है, 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस है, उसमें हमें सीखने को मिलता है, पता करने को मिलता है, बताया गया है। अब आप इसकी गहराई देखिए कि एक कोई भी डॉक्यूमेंट जो पूरे वर्ल्ड में कहीं भी पब्लिश हुआ है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो पब्लिश हो गया है, उसको उसका रीडर मिलना चाहिए, वरना उसके साथ पाप होगा, उसके साथ हम अधर्म करेंगे। और ऐसी बुक जो पब्लिश हुई है उसको उसके रीडर तक पहुंचना जरूरी है कि जिस पर्पज से वो बुक पब्लिश हुई है उसको वो रीडर मिलना जरूरी है, ताकि आने वाले समय में वो विचार जो उस बुक में है, जो आर्टिकल में है, जो उस एनसाइक्लोपीडिया में है, वो यूजर तक जाए और यूजर अगर उनको देखेगा, पढ़ेगा, मंथन करेगा तो वो डिलीवर करेगा आने वाले जनरेशंस के लिए। तो ये जो बातें मैं बता रहा हूं कि लाइब्रेरी साइंस का किस तरह से बैकबोन की तरह हम बातें बता रहे हैं, इसी तरह से लाइब्रेरी में एक और काम करता है, यूजर्स को, फैकल्टी मेंबर्स को उस बारे में नहीं पता। सर्विसेज है सेलेक्टिव डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, करंट अवेयरनेस सर्विस। यूजर्स को क्या चाहिए, फैकल्टी मेंबर्स को क्या चाहिए, एमफिल पीएचडी जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं, जो फैकल्टी मेंबर रिसर्च कर रहे हैं, आर्टिकल लिख रहे हैं, किसी कॉन्फ्रेंस में पेपर पढ़ने के लिए जा रहे हैं, उनको उनके ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशलाइजेशन, ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन डेटा, वो सब लाइब्रेरियन और उसका स्टाफ पहले से रखता है एंटिसिपेटरी लेवल पर कि किस तरह से हम, अगर वो फैकल्टी मेंबर है तो उसको वो डेटा हमें उपलब्ध कराना है। इसी तरह से विजिलेंस का जो डिपार्टमेंट है, जब विजिलेंस की, वॉचफुलनेस की बात करते हैं, अलर्टनेस की बात करते हैं, तो वो वॉच रखता है कि कहां कहां संदिग्ध एरिया है, कहां कहां हम प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उनको आइडेंटिफाई करके कैसे हम उन कॉज को रिड्यूस कर सकते हैं, उन इश्यूज को रिड्यूस हम कर सकते हैं। तो इनके पीछे के कुछ कारण भी हैं, रीजन है, कॉजेज है, क्या क्या है, उसमें 2-3 बड़े महत्वपूर्ण बताए गए। उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के नियम्स को लेकर के भी स्टाफ बात करता है, जैसे कॉम्प्लिकेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस, रिजिड ब्यूरोक्रेटिक फ्रेमवर्क, lack of transparency, lack of accountability, poor redressal cell system, inadequate surprise check and balance, lack of awareness about rights, duties, rules and regulations and laws। तो ये कुछ ऐसे कॉजेज हैं जिन पर फोकस करने की जरूरत होती है। कई बार क्या है, मैं एक और उदाहरण देकर आगे बढ़ूंगा मैडम, कई बार हम सबके हाथ बंधे होते हैं नियम कानून से, फाइल पे एज पर नॉर्म्स हम लिख देते हैं कि एज पर नॉर्म्स हमें इसमें चलना है, लेकिन कई बार स्थिति ऐसी बन जाती है क्योंकि फैकल्टी मेंबर्स हैं, प्रिंसिपल हैं, या मैं बीइंग ए प्रोवोस्ट, मेरे स्टाफ है, मेरे बच्चे हैं हॉस्टल में, कई बार ऐसी स्थिति, एक मैं नाम कोट नहीं करूंगा, एक स्टाफ की वाइफ को कैंसर हो गया और वो हमारा स्टाफ कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम करता है, लगातार उसको हॉस्पिटल और मेडिसिन और इधर से उधर ले जाने में अपनी वाइफ को, उसकी छुट्टियां लगातार होनी शुरू हो गई। अब कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहा है, डेली वेजिस पे जो स्टाफ काम कर रहा है, निश्चित रूप से उसको उसकी सैलरी नहीं मिलेगी।
परिवार भी ऐसा नहीं है, मुझे रावत जी बता देना, ज्यादा लंबा तो नहीं तो परिवार भी ऐसा नहीं है कि हमें इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी हो। तो ऐसे में क्या किया जाए, नियम कानून हमें हमारा अलाउ नहीं करते कि हम उसको उसकी सैलरी पूरी सैलरी दे दें और वो महीने में 15 दिन ही आया है। तो ये ऐसे केस हैं जो धर्म संकट पैदा करते हैं विजिलेंस के लिए, जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन है उसके लिए। इनके लिए क्या रास्ते हो सकते हैं, क्या व्यवस्थाएं हो सकती हैं, उनके बारे में सोचने की हम सबको भी जरूरत है। तो आगे बढ़ते हुए मैं इसमें एक चीज और आपके साथ शेयर करूंगा। हम याद करते हैं 1962 पंडित लाल बहादुर शास्त्री जी को। पंडित लाल बहादुर शास्त्री जी ने पहली बार के संथानन के नाम से एक प्रिवेंशन ऑफ करप्शन की कमेटी बनाई। ये 1962 की बात मैं बता रहा हूं। और इसी कमेटी के तहत हमारा 1963 में सीबीआई का गठन हुआ और इसी कमेटी के तहत अगले साल 1964 में सीवीसी का गठन हुआ और इसी कमेटी के तहत हमारा 1964 में ही अभी हम देखते हैं ना किस तरह से हम हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशंस की पोस्ट पर या कहीं दूसरी पोस्ट पर रह करके कई सारे ऐसे केसेस देश में दुनिया में देखने को मिलते हैं कि जो हमारी अर्निंग थी, जो हमारी सैलरी थी, रिटायरमेंट तक हमने उसे कई गुना कमा लिया, कई सारे प्लॉट्स बना लिए, कई सारी बिल्डिंग्स बना ली। ये वही कमेटी है 1964 की। आज भी मैं कोट नहीं करूंगा, बहुत बड़े हमारी इंडस्ट्रीज से उनकी प्रॉपर्टी अटैच हुई है इसी आर्टिकल के तहत। तो ये वही आर्टिकल है जो लाल बहादुर शास्त्री जी ने 1964 में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन का जो आर्टिकल, जो कमेटी बनाई थी के संथानन कमेटी, उसी के तहत फिर आगे हम जैसे आप सीबीओ और दूसरे लोग अपॉइंट हुए। तो सॉल्यूशन के पे चलते, इसमें सॉल्यूशंस क्या हो सकता है? आइडेंटिफाई सेंसिटिव पोस्ट। हमें सिस्टम में रहते हुए ऐसी पोस्ट को जो सेंसिटिव पोस्ट है उनको आइडेंटिफाई करना जरूरी है। रोटेशन सिस्टम पे भी काम करना जरूरी है कि किस तरह से हम लगातार, मैं इसी मेंबर था रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी जबलपुर में, तो बातचीत में वाइस चांसलर सर से पता हुआ कि वहां जो एग्जामिनेशन है लगातार वहां से कंप्लेंट आ रही है कि जो क्लर्क की पोस्ट पे बैठे हैं उनके पास में एप्पल के 2-2, 3-3 फोन है और ऐसा माना जा रहा है कि लोग पैसे देके मार्कशीट बनवा लेते हैं। तो मैंने कहा कि रोटेशन क्यों नहीं अपनाते हो आप चेंज कीजिए ना, 1-1 साल के अंदर, 2-2 साल के अंदर सीट को चेंज कर दीजिए, और जो अभी आज यहाँ वो दूसरी सीट पे काम करे। तो ये एक विजिलेंस का पार्ट हो सकता है कि कैसे हाउ वी कैन रिड्यूस द करप्शन, हाउ वी कैन कवर द लूपहोल्स लाइक दिस। तो अगर हम प्रोसीडिंग की बात करें, कहीं भी कुछ प्रॉब्लम हुई, कंप्लेंट हुई, कंप्लेंट पे इंक्वायरी कमेटी बनी, अब इंक्वायरी कमेटी जब बनेगी तो उसकी रिपोर्ट आएगी, उसकी रिपोर्ट आएगी तो फिर पर्टिकुलर कंसर्निंग पर्सन को हम शोकॉज करेंगे, शोकॉज का फिर वो रिप्लाई देंगे, रिप्लाई देने के बाद में फिर एक और ऑफर उनको दिया जाएगा जिसे हम फर्स्ट स्टेज एडवाइस भी कह सकते हैं, और इसके बाद हम चार्जशीट लागू करेंगे। फिर चार्जशीट की भी रिप्लाई हो सकती है, स्क्रीनिंग ऑफ रिप्लाई भी इसके बाद, इस स्टेज में बता रहा हूं, स्क्रीनिंग ऑफ रिप्लाई भी इसके बाद होगा, और फिर अपॉइंट करेंगे हम एक इंक्वायरी ऑफिसर, और इंक्वायरी ऑफिसर की फिर रिपोर्ट आएगी जो उसकी फाइंडिंग के लिए एक और प्रेजेंटिंग ऑफिसर होगा, और फिर वो अपने चार्ज सबमिट करेगा और वो चार्ज को हम डिलीवर करेंगे, और क्या उस पर पेनल्टी इंपोज होगी उसके बारे में डिस्कशन होगा। और इसके बाद फिर जो कंसर्निंग पर्सन से जुड़ा ये प्रोसेस शुरू हुआ है उसको विजिलेंस और उससे रिलेटेड जो एस्पेक्ट्स है, जो प्रोसीजर है, वो रेमेडी भी फॉलो करने के लिए बोलते हैं कि आपके पास अपील के लिए भी जाने का प्रोविजन है, आपको रिवीजन के लिए, रिव्यू के लिए जाने का भी प्रोविजन है, जिसको हम विद इन 45 डेज के अंतर्गत फॉलो कर सकते हैं। तो साथियों, ये एक विजिलेंस का पूरा
सिस्टम है, इसमें आपको भी अपने राइट्स पता होने चाहिए। राइट्स जानो अच्छे से, रूल रेगुलेशंस अच्छे से जानो। लेकिन मैं आपके बीच में बताना चाहूंगा कि हमें दिल से, शिद्दत से, ईमानदारी से अपने संस्थान के लिए काम करना चाहिए। जहां से हमारा परिवार पलता है, जहां से हमारे परिवार, हमारे बच्चे पलते हैं, उनकी रोजी रोटी और उनकी पढ़ाई लिखाई चलती है, हमें दिन में एक बार जरूर सोचना चाहिए अपने टेबल पे, चेयर पे बैठने से कि यहाँ से मेरी पहचान है इस संस्थान से, और यहाँ मैं कुछ भी ऐसा गलत नहीं करूंगा जिससे मेरे संस्थान की और मेरी बदनामी हो। तो ऐसा मौका ही ना मिले हमें, ऐसा कोई कदम हम ना उठाएं। और ये जो विजिलेंस है ना, विजिलेंस का काम ये भी है कि हम किस तरह से जो हार्ड वर्कर हैं, जो सिंसियरली काम करते हैं, जो ऑनेस्टली काम करते हैं, कि हाउ वी कैन प्रोटेक्ट द राइट ऑफ ए ऑनेस्ट पर्सन इन द सिस्टम, इन द एनी काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशन। ये भी विजिलेंस का एक काम है। तो मैं बता रहा था महात्मा गांधी जी का कोट, और करता हूं आपके बीच में, ऑनेस्ट डिफरेंसेस आर ऑफन ए हेल्दी साइन ऑफ प्रोग्रेस। कि किस तरह से हमारे विचारों में हमारे मतभेद हो सकता है, मतभेद हमारे रहना भी चाहिए। हमारे विचार नहीं मिले तो नहीं मिले, कोई बात नहीं, लेकिन हमारा मनभेद नहीं होना चाहिए। जहां हमारा मनभेद होगा वहां किसी भी संस्थान की, किसी भी परिवार की, किसी भी समाज की प्रगति रुक जाएगी। तो जरूरी है कि हमारे डिफरेंसेस हो भले, लेकिन मनभेद में हम ना रहे। हम अच्छी तरह से सभी जानते हैं कि बहुत सारे स्ट्रेस से गुजरते हैं, बहुत सारे प्रेशर्स होते हैं हम पे, लेकिन जरूरी है कि हम किस तरह से रिलैक्स करना, योगा के जरिए, मेडिटेशन के जरिए, और दूसरी बहुत सारी चीजें हैं, खान पान को सुधार करके, अपनी संगत को सुधार करके, हम तरह तरह के आजकल हमारे अवेयरनेस प्रोग्राम चल रहे हैं, उनके जरिए हम किस तरह से अपने मेंटली स्ट्रेस को कम कर सकते हैं, मेंटली स्ट्रॉन्ग हम बन सकते हैं। इसी में यदि देश को आगे बढ़ना है तो भ्रष्टाचार को जल्द से खत्म करना ही होगा। साथियों, जैसा कि भारत सरकार चाहती है, जैसा कि हमारी सरकार का विजन है कि हमें 2047 तक देश को विकसित राह पर ले जाना, विकसित देश के रूप में स्थापित करना है, तो निश्चित रूप से हम सबको मिलकर भ्रष्टाचार पर हमें लगाम लगानी पड़ेगी, इसको मिटाना होगा। जहां तक मोदी जी कहते भी हैं कि जहां भ्रष्टाचार होता है वहां युवाओं को उचित अवसर नहीं मिलते, वहां सिर्फ एक विशेष इकोसिस्टम ही फलता फूलता है। ये मोदी जी के भी विचार हैं। और चलता चलता मैं कौटिल्य की बात भी आपके बीच में कहता चलूं कि प्राचीन काल में कौटिल्य जी ने भी ये कहा है भ्रष्टाचार को लेके कि जिस तरह से सरोवर का सुरक्षा अधिकारी प्यास लगने पर पानी पीने के लिए घर नहीं जाएगा, सरोवर से ही कुछ पानी लेकर अपनी प्यास बुझाएगा, उसी तरह से शासन प्रशासन में, दरबारों में लगे हुए लोग, पदाधिकारी कुछ ना कुछ अपनी सुविधा के लिए करते रहेंगे। इस भ्रष्टाचार को कम किया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता है। ये कौटिल्य ने कहा है हजारों वर्ष पहले। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि अगर हम सब मिलकर ईमानदारी से प्रयास करें, जैसा कि आज हमने ओथ भी लिया ना, ईमानदारी से प्रयास करें, एक यूनिट के रूप में, जैसे एक एक बूंद से घड़ा भरता है, ऐसे ईमानदारी से हम सब अगर प्रयास करें मिलके, तो निश्चित रूप से हम एक दिन इस करप्शन को मिटा के रहेंगे, इसको अच्छे से एड्रेस करेंगे। साथियों, मैं आप सबका एक बार पुनः, हमारी प्रिंसिपल मैम रमा जी, मेरी बड़ी बहन, इस ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, विद्यार्थीगण, रिसर्च स्कॉलर, उपस्थित सभी फैकल्टी मेंबर्स और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से आए हुए सभी पदाधिकारीगण और नीतू मैम, सभी का एक बारी मन से पुनः बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you everyone for cooperation. So vigilance in Airport Authority of India is paramount.
dealing with national security and global connectivity. So it is now time for the most anticipating moment. We are privileged to hear from our chief guest of the event. I request our General Manager of Airport Authority of India, Mrs. Neetu Lam, to please deliver the keynote address and enlighten us on the theme of vigilance, our shared responsibility. मंच पर आसीन आज के समारोह के मुख्य अतिथि सीडीओ दिल्ली यूनिवर्सिटी श्री गजेंद्र सिंह सर, हंसराज कॉलेज की प्राचार्य प्रोफेसर रमा मैडम, लाइब्रेरी के विभागाध्यक्ष डॉक्टर नरेंद्र रावत एंड कन्वीनर ऑफ दिस प्रोग्राम आल्सो, एंड डॉक्टर आरसी गर्ग, उपस्थित सभी फैकल्टी मेंबर, रिसर्च स्कॉलर्स एंड डियर स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू. नमस्कार. थोड़ा आवाज आ जाए. एनर्जी यू आर द यूथ ऑफ द नेशन. सो लाउडली प्लीज कम ऑन. गुड आफ्टरनून. नमस्कार. Yes. So, first of all, I would like to express my sincere gratitude to management of Hansraj College, Professor Rama Madam, Dr. Narendra Rawat and Dr. R.C. Garg for organizing this event for Airports Authority of India and giving us this platform to interact with you and share our views on vigilance. I'd also like to congratulate all the students who have participated in the essay writing competition organized by Hansraj College for various colleges. Prize distribution will be subsequent to my speech. So मैं आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने एयरपोर्ट्स अथॉरिटी को ये मौका दिया कि हम सब यहाँ पे आए और आपको विजिलेंस अवेयरनेस वीक के बारे में अपने विचार साझा करें. जैसा कि विदित है कि विजिलेंस अवेयरनेस वीक का आयोजन पिछले सप्ताह पूरे भारतवर्ष में बड़े जोर शोर से किया गया. 27 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर तक विजिलेंस अवेयरनेस वीक का आयोजन किया गया था. साथ ही इसके अलावा प्रेल्यूड टू विजिलेंस का आयोजन, जैसा कि गजेंद्र सर ने बताया कि 3 महीने से ये प्रोग्राम चल रहा था. 16 अगस्त से लेके ये चलेगा 15 नवंबर तक, जिसमें हम बहुत सारे प्रिवेंटिव विजिलेंस से संबंधित बहुत सारी गतिविधियों का आयोजन करते हैं. तो इसी क्रम में मैं आपको बताना चाहूंगी कि विजिलेंस अवेयरनेस वीक का बेसिकली ऑब्जेक्टिव टू स्प्रेड अवेयरनेस अमंग मासेस रिगार्डिंग पेरिल्स ऑफ करप्शन, कि भ्रष्टाचार क्या है, भ्रष्टाचार से रिलेटेड एस्पेक्ट्स में विजिलेंस की क्या अहम भूमिका है भ्रष्टाचार को कम करने में. यही विजिलेंस अवेयरनेस वीक का एक उद्देश्य है. ये कोई एक सप्ताह का कार्यक्रम नहीं है, बल्कि यह एक सतत प्रक्रिया है जो हमें हमारे राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी में हमें जागरूक बनाती है. जैसा कि हम सब जानते हैं कि विजिलेंस अवेयरनेस वीक का आयोजन उस सप्ताह में किया जाता है जिस सप्ताह में सरदार पटेल की जन्म जयंती आती है, यानी कि 31 अक्टूबर. और उस दिन को हम यूनिटी डे या एकता दिवस के रूप में भी बनाते हैं, क्योंकि सरदार पटेल को उन्होंने भारत को, विभिन्न रियासतों को भारत में एकीकरण किया था. उन्होंने भारत की एकता और अखंडता में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. इसलिए 31 अक्टूबर को हम एकता दिवस के रूप में भी मनाते हैं. तो विजिलेंस अवेयरनेस वीक केंद्रीय सतर्कता आयोग, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के दिशा निर्देशानुसार हर सरकारी उपक्रम में, हर सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में हर वर्ष मनाया जाता है. और इसका उद्देश्य लोगों में भ्रष्टाचार के विरुद्ध मुहिम में जोड़ना है, लोगों को भ्रष्टाचार के विरुद्ध मुहिम में जोड़ना है. जैसा कि हम सब जानते हैं कि भ्रष्टाचार एक ज्वलंत समस्या है भारत में. और अगर हम ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल संस्था की एक रिपोर्ट आती है, उस रिपोर्ट की माने तो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत ग्लोबल इंडेक्स में 96वें स्थान पर आता है. तो इससे पता लगता है कि भ्रष्टाचार किस तरह से हमारे देश में व्याप्त होता जा रहा है. ये एक दीमक की तरह है जो हमारे देश की जड़ों को खोखला कर रहा है. भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई में आप सबका योगदान अति आवश्यक है. हम भारत को एक भ्रष्टाचार मुक्त
करके एक समृद्ध राष्ट्र का निर्माण करने में आज की युवा पीढ़ी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। हमें अपना कार्य अब की बार जैसे कि विजिलेंस अवेयरनेस वीक का हर बार एक थीम होता है, इस बार का थीम है विजिलेंस एक साझा जिम्मेदारी। विजिलेंस एक व्यक्ति विशेष की या एक केवल विजिलेंस विभाग की जिम्मेदारी ही नहीं है, अपितु ये हम सबकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम सबको अपने अपने रोल को, अपनी अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा और भ्रष्टाचार के विरुद्ध इस लड़ाई में हमें जुड़ना होगा। हमें ये प्रण लेना होगा कि हम ना तो कोई गलत काम करेंगे और ना ही किसी को गलत काम करने देंगे, और भ्रष्टाचार के विरुद्ध हमेशा अपनी आवाज उठाएंगे। We should have that courage and conviction to speak up against any evil which is going on around us. Alertness, जैसा कि जागरूकता गजेंद्र सर ने भी बताया कि अलर्टनेस और जागरूकता विजिलेंस का अर्थ है। विजिलेंस का मूल मंत्र ही है जागरूक रहना, अलर्ट रहना, अवेयर रहना। हमारे चारों ओर क्या हो रहा है, कोई गलत चीज तो नहीं हो रही है, क्योंकि अलर्ट रहकर ही हम बहुत सारी दुर्घटनाओं, बहुत सारे अनटूवर्ड इंसिडेंट से बच सकते हैं। अलर्टनेस, जागरूक रहना इज द मूल मंत्र। आजकल जागरूकता का अभी हमने एक वीडियो वायरल हुआ था कुछ एक हफ्ते पहले, जिसमें कापीएफ के जवान ने अपनी अलर्टनेस का परिचय देते हुए एक पैसेंजर जो गाड़ी और प्लेटफॉर्म के बीच में आ रहा था, तो उसने बड़ी जस्ट ही वाज फ्यू मीटर्स अवे फ्रॉम दैट एंड ही सेव्ड हर लाइफ ऑफ दैट पैसेंजर। तो ये ट्वीट किया था रेलवे ने, ये अपने ट्विटर हैंडल पे इस पोस्ट को डाला था कि जस्ट सी द बाय बीइंग अलर्ट हाउ he was able to save the life of a passenger. So इसी तरह से अगर हम अपने अपने कार्य के प्रति, हर चीज के प्रति जागरूक रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें, तो हम बहुत सारी गलतियों को, बहुत सारी रॉन्ग डूइंग्स को न केवल रिपोर्ट कर सकते हैं बल्कि उनके विरुद्ध एक मुहिम भी चला सकते हैं। आरबीआई के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन कहते हैं सतर्क बनिए, जानकार रहिए। अगर सतर्कता से हम बहुत सारी सावधान रहकर हम किसी गलत काम को रोक सकते हैं। जैसे कि हमको बार बार हमें बताया जाता है साइबर थ्रेट, साइबर सिक्योरिटी के थ्रेट्स आ रहे हैं कि आप कोई भी अनवांटेड लिंक पर क्लिक मत कीजिए, अदरवाइज आपका पूरा बैंक अकाउंट खाली हो जाएगा। तो ये सब अलर्टनेस के एग्जाम्पल हैं जो हमें बहुत छोटे से शुरुआत करना है और हमें इसी को बड़े स्तर पे लेके जाना है और हमें अलर्ट रहकर अपने आगे बढ़ते जाना है। तो कमिंग टू द पॉइंट कि विजिलेंस इज आवर शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम सबको, ईच वन ऑफ अस हैज द रोल टू प्ले इन द नेशन बिल्डिंग। आप युवा पीढ़ी हैं, आप देश की करीबन 65% आबादी युवा है। यू आर द फ्यूचर लीडर्स ऑफ द नेशन। आप कुछ भावी इंजीनियर हैं, कुछ भावी डॉक्टर्स, ब्यूरोक्रेट्स हैं जो पॉलिसी राइटिंग में अपना योगदान करेंगे, कुछ मे बी कुछ पॉलिटिशियंस हो सकते हैं। तो आप टॉर्च बियरर्स हैं नेशन का। अभी हमने जेनजी की पावर को नेपाल में देखा भी है कि इस तरह से जेनजी ने मिलके पूरा सत्ता परिवर्तन कर दिया। तो हर एक का हमारा योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। हम सब मिलके, हम ना सोचे कि हमें छोटे छोटे हमारे योगदान से क्या फर्क पड़ता है। जैसे कि सर ने बोला कि बूंद बूंद से ही, हम ये सोचे कि बूंद बूंद से ही तो घड़ा भरता है। एक छोटी, आपने रामायण में एक बड़ा अच्छा एग्जांपल आता है, हम सबको पता है, राम सेतु के निर्माण में एक गिलहरी ने किस तरह से अपना योगदान दिया। वो जाती, नदी में गीली होती, फिर वापस रेत में अपने आप को वो करती और दो पत्थर के बीच में आके वो रेत उड़ेल देती। फिर किसी ने देखा कि ये छोटी गिलहरी तो और मर जाएगी पत्थरों के बीच में, उससे उसे उठा के राम जी के पैरों में डाल दिया, उधर फेंक दिया। बाई चांस वो श्री राम के पैरों में जाकर गिरी तो श्री राम ने पूछा कि आप क्या कर रहे हो? तो उसने कहा मैं इस राम सेतु के निर्माण में अपना एक छोटा सा योगदान दे रही हूँ कि मैं जो भी योगदान दे सकती हूँ। तो वट एवर कंट्रीब्यूशन आई कैन मेक इन कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस राम सेतु, आई विल बी मोर देन हैप्पी कि एटलीस्ट मैंने ये इसमें अपना योगदान दिया है। तो जब एक गिलहरी की सोच इस प्रकार की हो सकती है तो हम क्यों नहीं, हम तो बहुत बड़ा डिफरेंस बना सकते हैं। इसी तरह से एक चिड़िया थी
एक जंगल में आग लगी हुई थी। वो बर्ड पास में एक छोटा सा पॉन्ड था, तालाब था, वहां पे जाके अपने पंख गीले करती और वहां पे थोड़ा सा अपने पंख झाड़ देती, पानी झाड़ देती। किसी ने पूछा कि आप क्या कर रहे हो? उसने कहा कि नहीं, मैं इस जंगल की आग बुझाने का प्रयास कर रही हूँ, क्योंकि इससे कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा। मैं अपना तो योगदान दूं, एटलीस्ट मैं इस जंगल की आग बुझाने में अपना योगदान दे सकूं। तो ये है हम सबकी पावर। ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर पावर नहीं है, सिर्फ हमें एक पहचानने की, अपनी शक्ति को जानने की जरूरत है। हमें नैतिक रास्ते पे चलने की जरूरत है। इंटीग्रिटी के साथ हमें अडिग रहना है। जैसा कि प्रवांशु ओझा जी ने भी बोला था कि रमा मैडम बोलती है कि कोई नहीं देख रहा है, हमें पूरी इंटीग्रिटी के साथ काम करना है। तो उसमें मुझे एक छोटी सी कहानी याद आ गई। एक संत थे, उनके 3 शिष्य थे। उनको अपना आश्रम का भार किसी एक शिष्य के ऊपर देना था, तो उन्होंने सोचा कि देखते हैं कौन मेरा उत्तराधिकारी, उनको चूज करना था। तो उन्होंने तीनों शिष्यों को बुलाया अपने पास। उन्होंने तीनों को एक एक कबूतर दिया। उनसे कहा कि आप जाइए, इस कबूतर को मार दीजिए, और लेकिन एक कंडीशन है कि आप उस कबूतर को वहां पे मारेंगे जहां पे कोई देख नहीं रहा हो। अब तीनों लेकर चले गए कबूतर को। एक शिष्य तो 1 घंटे के बाद ही आ गया कि मैंने इसको मार दिया, और दूसरा शिष्य लौट के आया थोड़ा आधा दिन के बाद, और तीसरा शिष्य अभी आया ही नहीं। तो जो 1 घंटे के बाद आया था उसने कहा कि मैं उस दीवार, उन्होंने कहा था कि इस दीवार के पीछे जाइए और मार दीजिए। तो वो उस दीवार के पीछे गया। जो 1 नंबर शिष्य था उसने उस कबूतर की गर्दन मरोड़ दी और वो लेके आ गया कि मैंने इसे मार दिया जैसा आपने कहा था। अब दूसरा शिष्य जो था उससे थोड़ा टाइम लिया। उसने कहा गुरुजी मैं उस दीवार के पीछे गया, लेकिन मुझे लगा कि आसपास के लोग देख रहे हैं, कोई देख रहा है, तो मैं अपने घर में बंद कमरे के अंदर चला गया। वहां मैंने उसकी गर्दन मरोड़ दी और मैंने इसको मार दिया। अब तीसरा शिष्य वो 2-3 दिन के बाद आया। तो उन्होंने पूछा, वो कबूतर उसके हाथ में जिंदा था। तो उन्होंने पूछा क्यों, मैंने तो आपको टास्क काम दिया था कि इसको मारना है। तो बोले नहीं गुरुजी, लेकिन आपने कहा था कि हम जहाँ कोई देख ना रहा हो। मैंने पहले देखा कि जब मैं कबूतर को लेके गया कि ये मुझे देख रहा है, तो मैंने उसकी आंख पे पट्टी बांध दी। फिर मुझे लगा कि मैं तो इसको देख रहा हूँ, फिर मैंने उसकी अपनी आंख पर पट्टी बांध ली। लेकिन फिर मुझे लगा कि हम लोगों को भी तो कोई एक ऊपर वाला देख रहा है, तो मैं इसे कहाँ पे मारूं। इसीलिए मैंने फिर इसको मारा नहीं कि हमें तो हम लोग को तो कॉन्स्टेंटली ऊपर वाला देख रहा है। तो हम जो है कि इंटेग्रिटी इज बेसिकली डूइंग द राइट थिंग्स व्हेन नो वन इज वाचिंग। सत्य निष्ठा है सही कार्य को करना जब हमें कोई देख ना रहा हो। एग्जाम में आपको चीटिंग का अवसर मिले लेकिन आप चीटिंग ना करें, वो सत्य निष्ठा है। आपको कोई किसी का कोई सामान, कुछ धनराशि पड़ी हुई मिले, आप उसको लौटा दें कि आपको पता है कोई रूम में नहीं है लेकिन ये मेरा नहीं है, वो सत्य निष्ठा है। अपने वैल्यूज, अपनी नैतिक मूल्यों के साथ खड़े रहना, उनको करेजियसली उनके साथ स्टैंड करना, वो सत्य निष्ठा है। ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी में यही एक, ऑनेस्टी से एक लेवल ऊपर है इंटेग्रिटी, कि अपने नैतिक मूल्यों के साथ स्टैंड, हैव द करेज टू स्टैंड बाय योर वैल्यूज, मोरल वैल्यूज इज द इंटेग्रिटी। देयर शुड बी absolute alignment between your saying and doing, whatever you say and whatever you do. So, हमें अपने कार्य क्षेत्र में पूरा सत्य निष्ठा और ईमानदारी के साथ अपने कार्य को करते हुए आगे बढ़ते जाना है, और कहीं भी हमें डगमगाना नहीं है। पूरे करेज के साथ हमें अपनी पावर को पहचाननी है। इसमें मैं आप लोगों के लिए, आप लोगों के अंदर पोटेंशियल है। मैं आप लोगों के लिए 2 लाइनें कहूंगी कि समंदर को देखकर ये मत समझना, समंदर को देखकर ये मत समझना कि समंदर में रवानी नहीं है। हम जब भी उठेंगे तूफान बनकर उठेंगे, हम जब भी उठेंगे तूफान बनकर उठेंगे, बस उठने की हमने ठानी नहीं है, ठानी नहीं है। तो मैं आपसे बस यही
मेरा यही मैं आपसे आग्रह रहेगा कि चल पड़िए ईमानदारी के रास्ते पर, चल पड़िए, जो ड्यूटी आपको मिली है उसको पूरी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी से निभाने के लिए, और चाहे राह में कितने भी रोड़े क्यों ना आए, बट हमें उसके साथ स्टैंड करना है। इसका एक बहुत क्लासिक एग्जांपल है मलाला यूसुफजई, जो आपने सबने सुना होगा, पाकिस्तानी सोशल एक्टिविस्ट, जो कि सन 2012 से ही गर्ल्स एजुकेशन की कोर्स को लेके उस उद्देश्य का अभियान चला रही हैं उस डायरेक्शन में। उसके लिए 2014 में उनके ऊपर एक बार वो अपने घर से स्कूल जा रही थी, तो रास्ते में तालिबानी टेररिस्ट उसको स्पेसिफिकली मारने के लिए बस के अंदर चढ़ा। उन्होंने कहा, हु इज मलाला, मलाला कौन है? देन विदाउट हैविंग एनी फियर करेजियसली शी रिप्लाइड, यस आई एम द मलाला। और उस पर उन्होंने उस पर गोली चला दी, और फॉर्चुनेटली और बाय हर बाय डिंट ऑफ रेजिलियंस, उनकी पावर, उनकी विल पावर इतनी स्ट्रॉन्ग थी मलाला की, दैट शी सर्वाइव्ड दैट अटैक एंड शी वाज द यंगेस्ट child, I'll say, she got the Nobel Prize at the age of 17 years. 17 साल की उम्र में सबसे कम प्राइज विजेता बनी, वो नोबेल प्राइज विजेता बनी सबसे कम उम्र की। तो उन्होंने कैलाश सत्यार्थी के साथ ये नोबेल प्राइज ग्रहण किया था। तो दिस इज द पावर ऑफ कन्विक्शन, कि किस तरह से हम जो हम कर रहे हैं, जो एक्शन लेना है पूरे विश्वास के साथ लेना है, उसके साथ खड़े रहना है, उसके साथ मूव नहीं होना है। क्योंकि कहते हैं ना कि ऊंचाई को पाने के लिए विकास चाहिए, अंधेरे को मिटाने के लिए प्रकाश चाहिए। सब कुछ संभव है इंसान के द्वारा, केवल कुछ करने का विश्वास चाहिए, केवल कुछ करने का विश्वास चाहिए। तो हमें पूरी ईमानदारी और सत्य निष्ठा के लिए, निष्ठा के साथ, बिना ये सोचे कि हमारा हम ये नहीं सोचना है कि हमें क्या मिला है, हम ये सोचे कि किया क्या है अर्पण। हम ये ना सोचे कि हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। आई थिंक इंटेग्रिटी को सिग्निफाई करने के लिए एक बहुत सुंदर गाना है, जो हम पुराना बहुत टाइम से, मुझे लगता है वो अपने पूरी चीज अपने आप में दर्शाता है। नेकी पर चले और बदी से टले, ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम। नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम, ताकि हंसते हुए निकले दम। तो फाइनली ज्यादा टाइम न लेते हुए मैं आपसे अच्छा, हम बी द चेंज एजेंट, आप चेंज एजेंट बनिए, जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं, चेंज लाना चाहते हैं। महात्मा गांधी ने कहा था, बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। अपने चारों ओर खुशियां बिखेरिए, दूसरों की मदद कीजिए। जैसे टाइटैनिक, एक एग्जांपल और मैं बच्चों को बताना चाहूंगी। आई विल जस्ट टेक अनदर 2 minutes टू वाइंड अप। टाइटैनिक जब डूब रहा था 1912 में, तो आपको पता है उसके पास 3 जहाज थे। उसके आसपास there were 3 ships. One ship was Californian, which was 9 miles away from the Titanic. Another ship was Samson, which was around 21 miles from the Titanic. And third ship was 58 miles, that was Carpathians. So, जब उन्होंने डिस्ट्रेस कॉल किया टाइटैनिक के कैप्टन ने, व्हाइट फ्लेयर्स स्काई में डाली, तो जब सबसे पहले नोटिस किया जो उसके पास था, जो कैलिफोर्नियन से, उनके they were into illegal hunting, but then they saw some white flares, but they didn't go. उनके कैप्टन ने कहा नहीं, हमें नहीं जाना है, आप छोड़ दीजिए। क्रू ने काफी उनसे रिक्वेस्ट किया, स्टाफ ने बताया सब इमरजेंसी कंडीशन, कोई शिप डूब रहा है, तो उन्होंने कहा नहीं, हमें नहीं जाना है, तो वो उन्होंने अपना डाइवर्ट कर लिया। सेकंड शिप वॉज जो सैमसंग थे, वो 21 माइल्स अवे थे। उन्होंने कहा हम लोग सुबह सोचेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। जब उन्होंने थर्ड शिप वॉज कार्पेथियंस, जब उन्होंने देखा कि व्हाइट कहीं से डिस्ट्रेस कॉल आई है, तो इमीडिएटली दैट कैप्टन नाइल डाउन, अपने घुटनों में झुक के उसने पहले तो अपने क्रू को बोला कि आप यू हेड टुवर्ड्स इन दैट डायरेक्शन, और अपने घुटनों में झुक के उनके लिए प्रे की कि मैं उन सबको, भगवान उन सबको सेफ रखे। एंड यू नो व्हेन दे रीच्ड इन द मॉर्निंग, दे वर एबल टू सेव हाउ मेनी लाइव्स? They were able to save 705 lives because of their alertness, because of their commitment to help others. तो ये होता है, तो हमें इसी तरह से अपने जीवन में कार्पेथियंस बनना है, ना कि कैलिफोर्नियंस बनना है। हमें समाज को बेहतर समाज बनाने में अपना पूरा योगदान देना है, पूरी अपनी अलर्टनेस के साथ हमें आगे बढ़ते जाना है। और अंत में मैं ईमानदारी के साथ सत्यनिष्ठा के और नैतिकता की राह नहीं छोड़नी है, और
इस राह पे बढ़ते चले जाना है। अंत में मैं अपनी स्वरचित लाइन के साथ कंक्लूड करना चाहूंगी। उन्नति का है मूल मंत्र, उन्नति का है मूल मंत्र सतर्कता, जागरूकता और ईमानदारी। उन्नति का है मूल मंत्र सतर्कता, जागरूकता और ईमानदारी। अपने देश को उन्नत बनाना है हम सबकी साझा जिम्मेदारी। अपने देश को उन्नत बनाना है हम सबकी साझा जिम्मेदारी। आओ मिलकर करें ये प्रण, आओ मिलकर करें ये प्रण, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाएंगे हम, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाए हम। ईमानदारी और सत्य निष्ठा से काम करके, ईमानदारी और सत्य निष्ठा से काम करके अपने देश को आगे ले जाएं हम, अपने देश को आगे ले जाएं हम। धन्यवाद। जय हिंद। Ma'am, your words were truly inspiring, and you provide us with a clear roadmap for fostering an ethical environment. Thank you, ma'am. So finally, we are at the point we have been waiting for. Vigilance begins with the awareness, and the essay competition was a crucial step in the promoting this. So we now call upon the vital member of the organizing team and coordinator, Dr. Shubham Arga, Assistant Professor of Department of Philosophy, Hansraj College. सतर्कता जागरूकता सप्ताह के अंतर्गत निबंध प्रतियोगिता आयोजित हुई थी। उसमें लगभग 61 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, जिनमें से जो पुरस्कार के लिए चयनित हुए हैं, सबसे पहले सांत्वना पुरस्कार के लिए आदित्य मिश्रा जी, हिस्ट्री डिपार्टमेंट, हंसराज कॉलेज। साक्षी पवैया, इंद्रप्रस्थ कॉलेज। शैविक साई कुमार और साक्षी पवैया और आदित्य मिश्रा, 3 लोग। थर्ड प्राइज के लिए श्रृंखला शुक्ला। सेकंड प्राइज के लिए ओंकार नाथ झा। थर्ड प्राइज जिनको मिला उनको 1100 रुपए और सर्टिफिकेट मोमेंटो। और सेकंड प्राइज के लिए ओंकार नाथ झा, भारतीय भाषा विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, 2100 रुपए। और फर्स्ट प्राइज के लिए सुजाता सलोनी, एम्स न्यू दिल्ली से, इनको 3100 रुपए प्रदान किया जा रहा है फर्स्ट प्राइज के लिए, 3100। कैसे है? ठीक है, बढ़िया। Professor Prabhanshu Odha. सर याद है